very important characters in the New Testament. New Testament में कई sisters भी हैं, which is one of the important characters. तो आप लोग भी शेयर करने के लिए मौका है. मैं थोड़ा टाइम के लिए शेयर करूंगा, उसके बाद एक एक करके सिस्टर्स आप मेरी मैगडलीन के बारे में या कुछ भी प्रभु आपसे क्या बात कर रहे हैं अपने जीवन में, क्या सीख रहा है, वो आप शेयर कर सकते हैं वचन से और एक दूसरे को भी प्रोत्साहन कर सकते हैं. तो सिस्टर सोनाली इज ऑन द लाइन. Yes, brother. Okay. So when we come to Mary Magdalene again, just a few thoughts I will share. और फिर से हम मरियम मगदलीनी के बारे में सीखेंगे और कुछ सोच रहा था मैं आपके साथ बांटूंगा. And she was the first one, she says, who Jesus removed 7 demons from her life. और यीशु मसीह ने उसके अंदर से 7 दुष्ट आत्माएं निकाली थी. And what were these evil spirits? We do not know, but she was a very bad character. ये दुष्ट आत्माएं क्या थी हम ये नहीं जानते, पर बहुत ही गंदा सा स्वभाव हो गया था उसका इस कारण. Now some people say that she was immoral woman, but the Bible does not say about immorality at all. और कुछ लोग कहते हैं कि वो व्यभिचारिणी थी, पर बाइबल इस बात को स्पष्ट नहीं करती है उसके चरित्र के बारे में. And after before Jesus died, maybe about 1 or 2 years, perhaps she must have got converted. और 1 या 2 साल यीशु मसीह के मृत्यु के बाद वो अपने जीवन मृत्यु के पहले उसका जीवन बदल गया था. So, and she must have been a very bad woman, and but she was so honest before God that Jesus Christ, was able to convert her and change her completely. और वो स्त्री का स्वभाव अच्छा नहीं था, पर उसको विश्वास था कि यीशु मसीह जो है उसके स्वभाव को पूर्ण रीति से बदल सकता है. And she had put her faith in our Lord Jesus Christ, who came as a savior of the world. और उसको पूरा विश्वास था यीशु मसीह पर जो इस संसार पर उद्धारकर्ता बनकर आए थे. And then after that, she became a new creation. और उसके बाद वो एक नई सृष्टि बन गई. She never went back into the old habits that she was doing, and a bad behavior changed. और वो फिर से अपने पुराने मनुष्य तत्व में, पुराने स्वभाव में फिर से नहीं लौटी. Many people around her must have remembered her past, but God has completely forgiven all her past. बहुत सारे लोगों ने उसके पिछला जो उसने जीवन था उसके बारे में उसको याद दिलाया, पर वो उसमें लौटी ही नहीं. And she changed her life completely. 180% degrees, she must have transformed her life. और उसका जीवन पूर्ण रीति से बदल गया था 180 डिग्री तक. She never went back into her old habits. She thanked the Lord for saving her, and she was fed up of her sin, and she changed completely. और वो फिर से परमेश्वर का बस धन्यवाद करती थी, जो पाप से बहुत थक चुकी थी कर करके, पर परमेश्वर का धन्यवाद करती थी कि वो बदल चुकी है. Jesus once said, "Those who are forgiven much will love much." और यीशु मसीह का वचन कहता है जो जिसको ज्यादा क्षमा किया गया है वो ज्यादा प्रेम रखता है. And she was the one who loved the Lord very much. और वो एक स्त्री थी जो यीशु मसीह से बहुत प्रेम रखती थी. She was serving the Lord many times while she was traveling along with the other sisters. और बहुत सारी बार यीशु मसीह की सेवा करती थी वो इस तरीके से कि दूसरी महिलाओं के साथ अन्य जगहों पर जाती थी. So when Jesus died, they were all very sad. और सॉरी ब्रदर. When Jesus died on the cross, they were very sad. और जब यीशु मसीह क्रूस पर मर गए तब वो बहुत ही उदास हो गई. These are the few people who loved him right up to the very end. और ये कुछ ही लोग वहां पर थे जो अंत तक यीशु मसीह के साथ थे. These people were Jesus. Mary Magdalene was there at the cross when Jesus died. और ये मरियम मगदलीन वहीं पर थी यीशु मसीह के पास जब वो क्रूस पर मारे जा रहे थे. Many of his own disciples were not there. और यहाँ तक कि यीशु मसीह के खुद के अपने चेले वहां पर नहीं थे. And even when Jesus' body was taken down and buried, she also was there. She went to see where they had kept the body. और जब यीशु मसीह को गाड़ा जा रहा था तब भी वो वहां पर थी ये देखने के लिए कि कहाँ पर रखा जा रहा है. And then on the third day, when on Sunday morning after the Sabbath, she was one of the very few people who went before even the sun was rising. She went just to see how we can put some preservatives and spices on the body.
और रविवार के दिन जब यीशु मसीह का जी उठने का दिन था, तब भी वो वहाँ कब्र पर गई थी बहुत सारी सुगंधित चीज़ें लेकर यीशु मसीह को देखने के लिए। All the other disciples were so discouraged that they were sleeping. और बहुत सारे जो चेले थे वो बहुत ही निराश थे और वो सो रहे थे। And she along with some other sisters went to anoint the body of Jesus Christ. पर वो दूसरी स्त्रियों के साथ चली गई यीशु मसीह को सुगंधित चीज़ें चढ़ाने के लिए। So this shows that so many of these sisters, along with Mary Magdalene, they loved the Lord so much that they were willing to get up and from their routine activities and make time for the Lord. और बहुत सारी महिलाएं और दूसरी भी थी मरियम मगदलीन के साथ जो यीशु मसीह से प्रेम रखती थी, इसलिए वो सुबह-सुबह ही उठकर वहां पर चली गई यीशु मसीह के पास। To come close to the Lord, we have to make time from our busy schedule. और यीशु मसीह के करीब आने के लिए हमें अपने व्यस्त जीवन में से कुछ समय निकालना होगा। There are so many things sisters have to do for the family from morning to night, but spending time with the Lord is a very, very important. महिलाओं के पास बहुत सारा काम होता है परिवार के साथ करने के लिए, परिवार के लिए करने के लिए घर पे बहुत सारा काम होता है, पर हमें यीशु मसीह के लिए समय को निकालना है। We must spend time thanking and praising God for what He has done for our lives, and He has saved us from hell, from the devil, and from sin. For that, we must be deeply thankful to God and say Hallelujah and praise the Lord. और हमें समय निकालना है कि यीशु मसीह ने हमें पाप से बचाया है, गंदे जो जीवन हम जी रहे थे, परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद करते हुए हमें वो समय को निकालना है। And God has brought us out from our bad ways of living into the family of God. और जो हमारे गंदे स्वभाव में हम रह रहे थे, परमेश्वर ने हमें वहां से लाकर अपने परिवार में सम्मिलित किया। And because she had such a devotion for the Lord Jesus Christ appeared to her first. और क्योंकि इतनी भक्ति थी यीशु मसीह के लिए उसके हृदय में, इसलिए अपने आप को परमेश्वर ने पहली बार उसी पर प्रकट किया। The other sisters also, but then Jesus appeared to her first. दूसरी स्त्रियां भी थी, पर यीशु मसीह ने अपने आप को उसी पर प्रकट किया सबसे पहले। When Mary Magdalene told that Jesus' body is not there, even the apostle disciples Peter and John, maybe others also came to see, and they also were very surprised. And after seeing all that, they went away. और जब यहाँ वहां पर यीशु मसीह की बॉडी शरीर जो था वो नहीं रखा हुआ था, तब वो अपने दूसरे चेलों को, जो यीशु मसीह के दूसरे चेले हैं, उसको बताने गई थी, पर उनको कोई उत्साह नहीं था। वो देखने के लिए आए जरूर थे, पर वो वापस चले गए सोने के लिए। Mary did not know what to do, so she didn't go back to her house. She stood outside there weeping. और वो उसको नहीं समझ में आ रहा था कि क्या करे, वो वापस घर तो नहीं जा सकती थी और वहीं पे बैठकर रोने लगी। And as she wept, it says in verse 11 that Mary was standing outside the tomb weeping, and as she wept, she stooped and looked into the tomb. यूना के अध्याय 20:11 में लिखा है, परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुककर देखने Now लगी। they've already seen that nothing is there. Jesus is not there. The disciples came. So many people came and see that the body was not there. Again, while crying, again she was thinking, perhaps Jesus will be there. और उसको पता था कि यीशु मसीह वहां पर नहीं है, दूसरे लोग भी देखकर गए हैं कि वहां पर नहीं है, पर वो बार-बार देखती जा रही थी कि शायद वहां पर होंगे। That was her love and devotion that she said, surely something, Jesus cannot go there from there, must be there. And that because of her faith, she should see two angels. और उसकी भक्ति थी, उसका विश्वास था कि यीशु मसीह वहां से नहीं जा सकते, इसलिए दो स्वर्गदूतों ने उसको आकर दर्शन दिए थे। And they asked her, why are you weeping? और उससे पूछा कि तुम क्यों रोती हो? Says, they have taken away my Lord, and I do not know where they have laid him. और उसने कहा कि कोई मेरे प्रभु को ले गया है और मैं नहीं जानती कि कहाँ है। She loved the Lord so much because what the Lord had done for her. और वो यीशु मसीह से बेहद प्रेम रखती थी क्योंकि यीशु मसीह ने उसके लिए बहुत कुछ किया है। And then Jesus appeared. और फिर उसके बाद यीशु मसीह वहां पर आ गए। The Bible says those who seek him with all their heart will find him. और ये बाइबल कहती है कि जो उसे ढूंढता है अपने हृदय से, वो उसे पाता भी है। The Lord will speak to you and me if we seek him with all our heart. और परमेश्वर हम पा लेंगे यीशु मसीह को यदि हम अपने पूरे हृदय से उसको खोजते हैं।
God does not show partiality with anybody. कोई भी भेदभाव यीशु परमेश्वर की ओर से हमें नहीं होता है। If we seek Him with all our heart, we will be able to see the Lord. यदि हम पूरे हृदय से उसको खोजते हैं, हम यीशु मसीह को देख पाएंगे। And that's what happened when Jesus spoke to her, and the first person to see Jesus was Mary Magdalene. और यही हुआ जब उसने खोजा तो उसने पाया यीशु मसीह को, और सबसे पहली बार यीशु मसीह ने उसी पर प्रकट किया अपने आप को। Jesus called her by her first name, Mary. और यीशु मसीह ने उसको उसके नाम से बुलाया, मरियम। And with that name, Jesus always calls us by our first name. और वो जो नाम है सबसे पहला ही यीशु मसीह के मुंह पर आया। See, the Lord is very intimate with all of us. That's why many times Jesus called Martha, Martha, Mary, Peter, all that. He calls us by our first name. और यीशु मसीह हमसे बहुत करीब है, इसलिए वो हमारे नाम से हमें पुकारते हैं, जैसे कि मार्था, मार्था और मरियम को पुकारा था, बहुत सारे ऐसे नाम से पुकारते हैं। He doesn't call by our father's name or by husband's name. हमें हमारे पति के नाम से, या फिर हमें हमारे पतियों के नाम Husband से नहीं पुकारते, or your father's name or even by your surname. या फिर हमारे पापा के नाम से, या फिर किस सरनेम के नाम से नहीं पुकारते। He calls us, each one of us, in a very intimate way. और हम में से हर एक को वो अपने पहले ही नाम से पुकारते हैं, Because He loves us. क्योंकि वो हमसे बहुत प्रेम रखते हैं। We are His brothers and sisters. He has saved us. और यीशु मसीह ने हम सबको बचाया है। And then we will know He calls us very lovingly. और कब हमें पता चलेगा कि वो हमें बहुत ही प्रेम से पुकारते हैं। And that voice Mary recognized. और वो जो आवाज थी वो मरियम ने पहचान ली। And then she began to worship Him. और वो उसकी महिमा करने लगी, स्तुति करने लगी। By bowing down before Him and holding His feet. और उसने उसके सामने झुक गई वो। Then Jesus gave her a wonderful message. और फिर यीशु मसीह ने उसको बहुत ही अच्छा एक संदेश दिया। Verse 17, it says, "Go to my brethren and say to them, I ascend to my Father and to your Father, and to my God and to your God." और 17 वचन, यीशु ने उससे कहा, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। Jesus gave her a brief message to go and tell His own disciples. और छोटा सा संदेश यीशु मसीह ने वहां पर दिया उसको कि जाकर अपने चेलों को बता दो। The angel could have told the disciples, or Jesus could have also told them, but Jesus told Mary to go and tell. वो स्वर्गदूत भी उसे बता सकते थे, या फिर यीशु मसीह तो अपने दूसरे चेलों को बता सकते थे, पर नहीं, यीशु मसीह ने मरियम पर इस बात को प्रकट किया। And many times when we love the Lord will give us a message to speak to our friends, our neighbors, to our brothers and sisters in Christ. और हम यदि यीशु मसीह से प्रेम रखते हैं तो परमेश्वर हमें छोटा सा एक संदेश देते हैं, ताकि हम अपने रिश्तेदारों में, दोस्तों में, सहेलियों में बांट सकें। And whatever the Lord has said, Mary went and told. और जैसे ही यीशु मसीह ने कहा, मरियम चली गई बताने के लिए। And she told because the Lord told her to tell. और उसने इसलिए बताया क्योंकि प्रभु ने कहा था उसे बताने के लिए। When the Lord has spoken to your heart something, God speaks to us always, through our Bible reading, through the messages that we hear in our private devotion, or through songs. और यदि यीशु मसीह आपसे कुछ बात करना चाहते हैं तो वो जरूर आपसे बात करेंगे, किसी वचन के द्वारा, या कभी आप प्रचार सुन रहे हैं उसके द्वारा, या किसी गीत के द्वारा। And we must not keep quiet. We must open our mouth and tell about the goodness of God, the message which God has given us. और हमें चुप नहीं रहना है, हमें अपना मुंह खोलना है और वो संदेश हमें बांटना है जो यीशु मसीह ने हमें दिया है। Especially that God, Jesus Christ, has saved us, and we have seen the Lord. और सबसे खास तौर से ये बोलना है कि यीशु मसीह ने हमें जीवन को बचाया है और अंत में हम उसे देखेंगे। Our God is a living God. हमारा यीशु मसीह जो है वो जीवित परमेश्वर है। Nothing is too difficult for Him. और कुछ भी उसके लिए असंभव नहीं है। And because of this, all these early disciples were filled with such faith that they were filled with the Holy Spirit. और इसी कारण जो चेले थे वो विश्वास से भर गए, पवित्र आत्मा से भर गए थे। And what did Jesus tell them?
to go to my father and to your father. और क्या कहा यीशु मसीह ने? उनसे ये कहा कि मैं तुम्हारे पिता और अपने पिता के पास जाता हूँ। And my God and your God. मेरे परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास। See, Jesus introduced the concept of God being a father. और उसने इस बात को स्पष्ट किया कि प्रभु जो है हमारा पिता है। Earlier there people used to call him Lord, but Jesus said, now you have a heavenly father who takes care of you. और पहले के समय में प्रभु को परमेश्वर ऐसा करके पुकारा जाता था, प्रभु करके पुकारा जाता था, पर अब यीशु मसीह ने स्पष्ट किया कि वो हमारे पिता हैं। The first prayer Jesus taught us is, Our Father who art in heaven. और सबसे पहली प्रार्थना जो यीशु मसीह ने सिखाई वो ये थी कि हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। It says, Our Father. वो हमारे पिता हैं। That is, God has got so many children, we can call him Daddy, Father. और यीशु परमेश्वर के बहुत सारे बच्चे हैं, हम उनको पिता पापा करके बुला सकते हैं। So we need not be insecure at all. हम कभी भी अपने आप को असहाय महसूस नहीं करेंगे। Whatever people think about that is not important. We know we have the God who made heaven and earth, loves us, and he cares for us. और हम लोग जो क्या कहेंगे हम उसकी परवाह ना करते हुए हम यही देखेंगे कि यीशु मसीह जो हमारा पिता है स्वर्ग में है, हमारे साथ है। And we are very beloved to him and very dear to the Lord. और हमसे वो बहुत प्रेम रखता है, हम बहुत प्रिय हैं प्रभु के। So we have not to feel fearful or feel low about ourselves, but we have the confidence that God loves us. और हम फिर डरेंगे नहीं, हम बहुत ही मतलब बिल्कुल अडिग रहेंगे कि यीशु मसीह है, हमसे प्रेम रखता है। Even after conversion, Mary Magdalene must have faced, a lot of people would have despised her. और उसने जब मन परिवर्तन हो गया था, उसका यीशु मसीह के पीछे चलने लगी थी, तब बहुत सारे लोग उसका विरोध करते थे। Nobody wants a bad character to come into their house. और कोई भी नहीं चाहेगा कि गलत स्वभाव के कोई भी व्यक्ति या उनके घर में आए। Even though she has changed. यहाँ तक कि वो बदल गई थी तो भी। Human beings' opinions are very, very uncertain. और मनुष्य के जो स्वभाव जो सोच रहती है वो अलग रहती है। God always looks at the heart. और यीशु मसीह परमेश्वर जो है हमारे हृदय को देखता है। In God's sight, she was pure. और प्रभु की नजरों में वो बहुत शुद्ध थी। And her behavior also after this 1 or 2 years after the conversion was very pure. She had the most devotion to the Lord. और उसने जब प्रभु के पीछे चलना शुरू किया था, 1-2 साल बाद उसका सोच विचार भी बदल गए थे, वो शुद्ध हो गए थे। And the Bible says those who are pure in heart will see God. और प्रभु का वचन कहता है जिनके मन शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेंगे। And that is why she was the first one to see the Lord. और इसीलिए परमेश्वर को सबसे पहले उसी ने देखा। She was the best person living at that time. उस समय की सबसे उत्तम महिला थी। And that is why she had fellowship with the Lord, and the Lord gave her a message to tell the disciples. इसलिए यीशु मसीह के साथ संगति थी उसकी और उसको संदेश दिया गया था दूसरे चेलों को बांटने के लिए। And that is why we also, even after our conversions, we should be ready at all times, to be pure in heart, to have a sincere love for the Lord at all times. अब हम भी यीशु मसीह के पीछे चलने लगे हैं, हमें हमारे मन को शुद्ध रखना है और हमेशा हम पाप से दूर रहना है। To have a humble attitude. और हमें दीन और नम्र बने रहना है। As long as the Lord is happy with us, then other people's opinions are not important. और जब तक हम प्रभु यीशु मसीह में कुछ आनंदित रहेंगे, दूसरों की जो बातें हैं हमें ठेस नहीं पहुंचाएगी, हमें कोई मतलब नहीं होगा उससे। The world may despise us, that other believers also may despise us, but we must keep our conscience clear and a humble attitude before God. बहुत सारे लोग हमारा विरोध करेंगे, हमारे रिश्तेदार हमारा विरोध करेंगे, पर हमें अपने प्रभु के सामने हमें दीन और नम्र बने रहना है। Today I was reading Psalm 34. और मैं आज भजन संहिता 34 पढ़ रहा था। It says, the Lord is close to those who are humble and a contrite spirit. और यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रभु उनके बहुत करीब रहते हैं जो जो दीन और नम्र होते हैं। That is in verse number 18.
18. Okay. Yeah, the Lord is near to the broken-hearted, verse 18, and saves वचन those who are crushed in spirit. वचन 18, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। Yes, and when we are repentant और जब in हम our heart पश्चाताप and we feel really sorry and we are sorrowful and broken-hearted, और जब हम बहुत पश्चाताप करते हैं, बहुत टूटे मन के हो जाते हैं, the Lord loves such people. और उन लोगों से प्रभु बहुत प्रेम रखता है। So we can pray to the Lord like Mary Magdalene. She was crying, and she was not crying for herself, but she wanted to be in the presence of the Lord. और मरियम मगदलीन की तरह ही बनना है, वो रो रही थी, अपने लिए नहीं रो रही थी, पर प्रभु से प्रेम रखती थी, इसलिए रो रही थी। She was not crying because other people had mistreated her and called her bad things. और वो इसलिए नहीं रो रही थी कि दूसरे लोग उसका हंसी ठट्टा उड़ाते हैं, बुरी चीजें बोलते हैं। Most women are always complaining, and most people also complain because this one has done that, they have ill-treated me, they keep on crying and crying. और बहुत सारी महिलाएं हैं, शिकायत करती है, बहुत सारे लोग हैं जो शिकायत करते हैं कि ये हमारे बारे में बुरा कहता है। But Mary Magdalene was crying because she wanted the presence of the Lord. और मरियम मगदलीन इसलिए रो रही थी क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति चाहती थी। Said, Lord, why is your presence gone away? Why are you not here? Lord, please, I want to be and to see you. और वो कह रही थी कि क्यों आप प्रभु यहाँ पर नहीं हैं, मुझे आपको देखना है। If there is something wrong in my own life, क्या मेरे जीवन में कुछ गलत है? and that so there are many times the Lord shows there are certain wrong things in our life. और फिर बहुत सारी बार परमेश्वर हमें बताते हैं कि हाँ, तुम्हारे जीवन में ये गलत है। Every day we can see so many wrong things. और हर एक दिन हम देख सकते हैं कि हमारे जीवन में बहुत सारी गलत बातें हैं। Most people keep on justifying themselves. No, no, no. They think they are very minor and they don't cry over it. और कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि नहीं ये तो बहुत ही छोटी चीज है, फिर इसके लिए रोते नहीं है। And those who humble themselves and repent, God comes very close to them. और जो अपने आप को नम्र और दीन बनाते हैं, उसके प्रभु बहुत करीब होते हैं। They think that others are better than them, and God has to be merciful to them. और कुछ लोग यदि ये कहते हैं कि मैं जो दूसरे हैं वो मुझसे ज्यादा बेहतर है, परमेश्वर का अनुग्रह उन पर होता है। So the Lord always is close to those who are humble and who are willing to change. और प्रभु उसके बहुत करीब रहते हैं जो बदलना चाहते हैं, अपने आप को दीन और नम्र बनाते हैं। So let us also have that spirit, always to have a humble heart and willing to change things in our own life. हमेशा दीन और नम्र बने रहिए और हमेशा चाहते रहिए कि हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा हो जाए, बदल जाए हम लोग। And always look to the Lord in every situation. और हर एक परिस्थिति में यीशु मसीह को हमें देखना है। These are the people the Lord loves और यही वो लोग हैं जिससे यीशु प्रभु प्रेम रखते हैं and very close to them. और बहुत ही करीब रहते हैं। Sometimes we think that God loves those people who can preach very well or sing very well or can manage everything well, Christians, believers. But God is always close to those who have humble heart. और हम काफी बार ऐसा सोचते हैं कि जो प्रभु उनसे ही प्रेम रखते हैं, जो अच्छा प्रचार करते हैं, अच्छा गाना गा सकते हैं, पर प्रभु अपने आप को किसी पे प्रकट कर सकते हैं। And always have a humble heart at all times. हमेशा अपने हृदय को नम्र बनाकर रखिए। So that is why, because we are always prone to become proud very, very fast. ताकि हम बहुत सारी बार ऐसा होता है कि हम बहुत जल्दी अपने आप में घमंड ले आते हैं। And the sign that we are so proud is that we keep on complaining and blaming other people. और हम कैसे पता लगाएं कि हम बहुत ही घमंडी है, फिर हम हर एक बातों में शिकायत करने लगेंगे। In our mind also we find the fault of other people. और हमारा जो दिमाग है दूसरे लोगों में खामियां ही ढूंढता रहेगा। That is why we have got a proud mind. और फिर हमारा जो दिमाग है वो बहुत ही घमंडी हो जाएगा। Mary Magdalene was not thinking about the faults of the disciples and of other apostles, saying, "Why are they still sleeping? See, they are sleeping, and we are come early in the morning doing all this work." She had no complaints like that at all. मरियम मगदलीन को शिकायत नहीं थी दूसरे चेलों से कि वो सो रहे हैं, हम ही उठकर सुबह-सुबह जा रहे हैं, क्यों सो रहे हैं, पर वो बस जाती थी। Even after they came, Peter and John, they came and they went away and leaving her all alone. She was all alone there. और यहाँ तक कि पतरस और यूहन्ना भी वहां पर आए, पर वो वापस चले गए, वो वहीं अकेली रह गई। But she said, "Lord, I want you and your presence.
forget about all the other people. She didn't even think about the faults of other people. और पर उसने कहा कि प्रभु मुझे तो आप ही चाहिए हो, और उसने यहाँ तक कि ध्यान भी नहीं दिया कि क्या कमियां हैं उनके अंदर, क्यों चले गए। I'm such a big sinner whom you have saved. You have done so much for me, Lord. I just want to have, just want to see you. Just want to see you. I don't want to touch you also. I just want your presence. और बहुत बड़ी उसने कहा कि मैं बहुत बड़ी पापी हूँ जिसको आपने बचा लिया प्रभु। मैं आपको देखना चाहती हूँ, आपकी उपस्थिति चाहती हूँ, छूना भी नहीं चाहती, बस देखना चाहती हूँ प्रभु। So let this also be a cry in each one of our hearts that we should always see the Lord and we don't want to see the faults of other people. और यही हमारे हृदय में एक पुकार होनी चाहिए, हमें भी रोना चाहिए कि परमेश्वर हमारे करीब हो जाइए। It's not our husband, not our father, not our brothers, sisters, anybody. It's Lord, I want to be with you. If God is the presence of God is there with us, it is like going to heaven. और ना ही कोई पति, कोई पत्नी या फिर कोई परिवार का कोई भी सदस्य, बस प्रभु के हमें करीब जाना है सबसे ज्यादा। So that is to have the atmosphere of heaven over our lives. और ये स्वर्ग का वातावरण होगा हमारे जीवन में। And that is the wonderful thing that we learn from Mary Magdalene. और ये बहुत ही अद्भुत और एक अच्छी बात है जो मरियम मगदलीन से हम यहाँ सीख सकते हैं। And she was so joyful to go and tell the other people about this good news. और बहुत ही आनंदमय होगा ये बात कि हम खुशखबरी जो है दूसरों लोगों को भी सुने। And then whatever service we do for the Lord also will be done with the joy of the Lord, not expecting anything from anybody, and just say, Lord, I'm just so grateful because that's why I'm doing your work. कोई भी हम सेवकाई करते हैं प्रभु के लिए, वो हम आनंद के साथ करते हैं, कुछ भी पाने के लिए नहीं, बस प्रभु को खुश करने के लिए। So these are a few things I just thought of sharing. So you'll also start sharing something which you learned from the life of Mary Magdalene one by one, sisters and brothers, sisters, all our sisters, of course. And she's a wonderful example to think about. और ये कुछ बातें थी जो मैंने आपके साथ बांटी हैं। अब आपके पास भी समय है कि आप बांट सकते हैं। Anybody can start. मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद करती हूँ। और वाकई में मरियम मगदलीन जो है वो बहुत ज्यादा प्रेम करती है यीशु मसीह से। और जब मैं इसके बारे में सोच रही थी, और जब अभी अभी जब ब्रदर ने बताते जा रहे हैं और मैं भी यहाँ से बोलती जा रही हूँ, मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने ऐसा देखा जब वो यीशु मसीह से कितना ज्यादा प्रेम करती है। और मैंने अपने आप से अगर ये देखा है तो मेरा प्रेम बहुत फीका है। मतलब मुझे तो लगा ही नहीं कि मैं कुछ प्रेम रखती हूँ यीशु मसीह से। मेरी ये प्रार्थना है प्रभु से कि मैं भी प्रभु यीशु मसीह से बहुत ज्यादा प्रेम रखना चाहती हूँ, क्योंकि यीशु मसीह ने मुझसे बहुत प्रेम किया है। उसकी कोई तुलना नहीं है कि यीशु मसीह ने नहीं किया है, नो डाउट। मतलब बिल्कुल भी मुझे संदेह नहीं है। यीशु मसीह अपने बेस्ट मुझे दिया है प्रभु ने, हमेशा हमेशा। पर मैंने प्रभु को क्या दिया है। मरियम मगदलीन जो है वो कितनी कितनी बड़ी बात कह दी उसने। जब मैं पढ़ रही थी यूना 20 का 13 पढ़ रही थी, उन्होंने यीशु मसीह ने उससे कहा, हे नारी तू क्यों रोती है। उसने उससे कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए हैं। उसने कहा कि वो मतलब मेरे प्रभु को उठा ले गए हैं। उसने बोला मेरे, मतलब वो बोल रही थी कि मेरा प्रभु है, कहाँ चला गया। मतलब कितनी चिंता है उसको प्रभु की, कितना प्रेम रखती है वो प्रभु से। इसलिए प्रभु ने चाहे वो कितनी पापी है, पर चाहे वो एक महिला है, पर परमेश्वर ने उसको उस पर अपने आप को प्रकट किया। मतलब मैं परमेश्वर मुझसे भी बहुत प्रेम रखते हैं, पर मेरा डेडिकेशन उतना नहीं है। मैंने जज किया है अपने आप को। परमेश्वर मैं अपने आप को कर पाई। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मुझे बताया कि मेरा प्रेम जो है वो ठंडा नहीं पड़ना चाहिए। मैं प्रभु से बहुत प्रेम करना चाहती हूँ और हमेशा मेरा प्रेम सरगर्म रहे। और हम सब, मैं आपको भी प्रोत्साहन करना चाहूंगी कि हमें हमेशा यही प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु मतलब मैंने एक बार ब्रदर जैक को भी सुना था, वो यही बोल रहे थे कि हमेशा ऐसे ही मतलब प्रार्थना करनी चाहिए कि जैसा प्रेम मरियम मगदलीन ने किया है, वैसा ही प्रेम प्रभु हमें भी दीजिए कि ताकि हम आपसे प्रेम रख सकें। और मैं बहुत प्रोत्साहित हुई हूँ इस वचनों से। और वो कहती है, उसने ये भी कहा कि प्रभु यदि तू जानता है उसको कहाँ रखा है तो मैं उसको उठा कर ले आऊंगी। तो वो उसका प्रेम वहां पर छलक रहा है, मतलब झलक रहा है कि वो कैसे कितना प्रेम रखती है कि वो प्रभु को कहीं से भी उठाकर ले आएगी। मतलब उसको बस प्रभु चाहिए। तो मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला है और मुझे यीशु मसीह से इतना ही प्रेम रखना है। हाँ।
Anybody else? मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मरियम इतनी पापीन स्त्री थी जो प्रभु ने उसे 7 दुष्ट आत्माएं से छुड़ाया और उसे शुद्ध किया, जो परमेश्वर का बेटी बनाया। जैसा हम जब प्रभु को नहीं जानते थे तब हम पाप में थे, और प्रभु ने हमें बिना स्वार्थ के, प्रभु ने जो मुझे पाप से निकाला, और हमें पाप से निकाल के भी हमने कुछ नहीं किया, फिर भी हम लोग संसार में डूबे रहते हैं, संसार के हर चीज में रहते हैं, लेकिन प्रभु को हम दूर रखते हैं। लेकिन हम मरियम से हमने ये सीखा कि हमें प्रभु को पहला स्थान, पहला प्यार हमें देना चाहिए, ताकि प्रभु भी हमें हमारा हृदय में यही चाहता है कि प्रभु को हम पहला स्थान दे, और हम सच्चे मन से, सच्चे हृदय से हम परमेश्वर को प्यार कर सके। और जैसा मरियम मगदलिनी जो सवेरे जो भोर होते ही जो प्रभु को ढूंढ के जाती है, कि वो कुछ नहीं सोचती है कि रात है सुबह है, ऐसा कुछ नहीं। जो प्रभु को इतना प्रेम उसने किया कि प्रभु को देखने गई, और प्रभु ने उससे जाना कि मरियम ने मुझे इतना प्रेम किया, तो उसे दिखाई दिया। और परमेश्वर ने एक स्त्री को इस संसार के योग्य जाना। प्रभु की स्तुति हो। आमीन। Amen. Hallelujah. Sisters, one by one I can share. So Jennifer, you have something to share. Deepika, Rija, Manisha, जल्दी जल्दी फटाफट बोल दीजिए। हाँ, कुछ भी बोल दो, 1-2 महीने आपका गवाही बोल दो कि आपका क्या इच्छा है हमारे हार्ट का, बोल दे। बाकी सिस्टर्स भी, सुरेखा, प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ। सिस्टर संजय। हेलो, हाँ बोलिए। प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ आज के सभा के लिए, आज के वचन के लिए। मैं यही चाहती हूँ, जो मैंने सीखा है कि हर परिस्थिति में मुझे मेरे जीवन में परमेश्वर के प्रति अच्छी सोच रखनी है, परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो। और मेरे जीवन में मुझे डिसिप्लिन रखना है और सच्चे हृदय से प्रभु के पीछे चलना है, उसकी आज्ञा का पालन करते हुए। और जैसे प्रभु ने मरियम का जो उसका स्वभाव बुरा था, उसने विश्वास किया, प्रभु ने उसे बदला। मैं भी जांचती हूँ, मेरा जो स्वभाव है वो भी अच्छा नहीं है, तो मेरा भी विश्वास है कि प्रभु मुझे उस स्वभाव से बाहर निकालेंगे। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। आमीन। I praise and thank God for today's message, as brother was sharing about the life of Mary Magdalene. And it has encouraged me and also challenged me to continue to follow my Lord with all my heart, all of myself, and nothing else. As it shows that how much she loved the Lord. She loved the Lord with all her heart, and there was so much of love that she didn't even sleep that night. She was full of sorrow, and she wept for the Lord, and she was waiting for the dawn, and she was the first one to see Jesus. And she was so blessed that Jesus told her to go and tell everybody that that he's alive. And that encourages me that no matter whatever my life is, however bad my past has been, the Lord has forgiven me, and he loves me with all he loves me so much that he has forgiven me and he has accepted me.
So I Amen. don't have this fear in my heart, because once my life was, when I think about Mary Magdalene, it always brings to my mind that I am also like that. I was the same kind of a person in the world. I was lost. I was full of sin. My life was, and I was going to be lost in this world. But God, in His mercy, called me in His kindness. I didn't know Him. I was not. I had given up. Like, there was no hope in my life. It was hopeless, and I thought that what am I going to do now? But that is the time when the Lord lifted me up, and I thank and praise Him for all the love. And like, it says that when it is about the lost son, it says when he finally came to his senses, he said to himself at home. And even I'm reading from Luke 15. It says that when the son came to his senses, he said, I will go home to my father and say, Father, I have sinned against you and heaven, and I am no longer worthy of being called your son. So I also feel the same, that I was lost in the world and there was no hope. When I came to my senses, I realized that I'm such a worse sinner, and the Lord has called me, and I repented, and I turned to the Lord. And this verse tells me that the Lord has accepted us, and we are His children. I'm His daughter, and He will never forsake me, whatever situations will be in my life. But He's always lifting me up, and He helps me through the Holy Spirit and through His word to continue. Amen. Anybody else? I'm sure everybody has got something to share. परमेश्वर का मैं धन्यवाद देती हूँ इस वचन के लिए कि परमेश्वर ने हमें ये वचन दिया है, ये मरियम मगदलीनी के बारे में, कि जो मरियम थी वो बहुत परमेश्वर के एकदम मतलब परमेश्वर के हर एक वचनों पे चलती थी, और उसके हर एक मतलब बात वचन जो लिखा है उस पे चल के, और वो एकदम मतलब जैसे उसके अंदर एकदम कि परमेश्वर क्या चाहता है हमारे जीवन से, वो सब उसको जैसे वो सब मतलब सच सच ऐसे उसको ऐसे विश्वास हो गया था। उसी तरह हमें भी विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर हमें कभी छोड़ता नहीं है, कभी त्यागता नहीं है, क्योंकि वो हमें हर चीजों का मतलब जवाब दे देता है कि तुझे मैं रास्ता दिखाता हूँ हर एक चीज का। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर मेरे भी जीवन में कभी भी परेशानी आती है और कुछ भी होता है तो मैं बस परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ, परमेश्वर का नाम लेती हूँ, प्रभु मैं नहीं जानती हूँ, बस आप जानते हो क्या है मेरे जीवन में, क्या ये चल रहा है, जो भी परेशानी है, जो भी दुख से है, प्रभु मैं आपके ऊपर डालती हूँ, क्योंकि आप ही मुझे सहारा देंगे, मुझे रास्ता बताएंगे। मेरे बच्चे हैं 4, उन्हें भी संभालने के लिए मदद करते परमेश्वर, आप ही परमेश्वर मदद करते। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु हमें मिला, मुझे बुलाया हाथ पकड़ के, नहीं तो मैं भी संसार के जीवन में थी, संसार में चल रही थी, और जैसे अंधेरे में आदमी खो जाता है उसी तरह हम लोग भी खो गए थे, लेकिन परमेश्वर ने हाथ पकड़ के बुलाया, उसके लिए धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का। और हमें कलीसिया भी दिया अच्छा, कि ताकि हम आगे देख पाए कि दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उससे बचने के, उस पे चलने के लिए परमेश्वर हमें रास्ता दिखा है, उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ कि इस वचन से मेरे जीवन में एकदम यही सोचती हूँ मैं कभी कभी कि परमेश्वर अगर नहीं मिला होता हमें तो हम कहाँ होते, किधर होते, कैसे होते, भटक जाते। परमेश्वर का मैं धन्यवाद देती हूँ इस वचन से। मरियम की तरह हमें भी बनना चाहिए कि परमेश्वर को खोजना चाहिए कि परमेश्वर कहाँ है, किधर है। प्रभु का मैं धन्यवाद देती हूँ इस वचन के लिए। आमीन। और 2-3 सिस्टर्स और शेयर कर सकते हैं।
3-4 एक मिनट भी ले लीजिए. Anybody can share? So the Lord touched you. प्रभु आपको क्या हुआ है आपका जीवन में? अब ब्रदर मुझे एक बात और कहनी जी बोलिए. जी। जैसे कि अभी ब्रदर बता रहे थे हमको कि यीशु मसीह जो है हमें हमारे नाम से पुकारता है। तो मैं अभी ऐसे मेरे मन में एक ख्याल आया था और प्रभु हमसे प्रेम रखता है इसलिए हमें प्रभु हमारे नाम को जानता है। और मैंने एक जगह एक बात पढ़ी थी तो मैं आपके साथ बांटना चाहती हूँ कि वहां पर लिखा हुआ था कि शैतान हमारे नाम को जानता है पर हमारे पाप से हमें बुलाता है और प्रभु जो है हमारे पापों को जानता है पर हमारे नाम से हमको बुलाता है। तो वो बात मैंने अभी मेरे ख्याल में आई तो मेरे को लगा कि मुझे सबसे बांटना चाहिए कि प्रभु हमसे बहुत प्रेम रखता है और दूसरे लोग जो है हमें अपने पापों से ही जानते होंगे शायद कि इसने ऐसा किया था, उसने वैसा किया था क्योंकि मेरा जो पुराना जीवन था वो पूरा पाप से भरा हुआ था। जो पुराने जो लोग थे अभी अगर मुझे मिले तो वो मेरे पापों से ही मुझे जानेंगे कि ये ऐसा करती थी, झूठ बोलती थी, इसने ऐसा किया था। जो भी मैंने पाप किए थे मैं जानती हूँ उस बात को। तो वो बहुत सारी बातें बोलेंगे पर हमें उन पर ध्यान ना देते हुए प्रभु हमें नाम से पुकारता है ना, हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। आमीन। आमीन. Anybody else? एक मिनट के लिए बोल सकते हैं. Anything that has touched you? प्रभु आपने कुछ छुआ है, कुछ एनकरेज किया है तो आप मुंह खोलेंगे तो अच्छा रहेगा. सिस्टर्स का मीटिंग है, आप लोगों को शेयर करना है. मैंने तो थोड़ा ज्यादा टाइम दिया था, फिर आपको भी लेना चाहिए. जैसे हम कहा था कि प्रभु हमसे हमारा पहले नाम से हमको बुलाते हैं क्योंकि प्रभु हमारा पिताजी है. हम वी आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड. हम कैसे भी हो, कितने भी भटके हुए हैं, वी हैव गॉट अ फादर. जैसे एक सिस्टर ने शेयर किया कि वो लड़का था जो पिताजी से दूर चले गए थे, प्रोडिगल सन. वो बाद में वो होश में आया तभी उन्होंने कहा ठीक है मैं मेरे जीवन कितना खराब हो लेकिन मेरा एक पिताजी है मुझसे प्यार कर रहे हैं. मैं पिताजी के पास जाऊंगा, मैं बोलेंगे मैं पुत्र होने का योग्य नहीं है. आई एम नॉट वर्दी टू बी कॉल्ड योर सन, आई विल बी अ सर्वेंट, गिव मी समथिंग टू ईट. इतना से उन्होंने एक उनका पिताजी का याद आया कि पिताजी बहुत बड़ा है, पिताजी का दिल बहुत बड़ा है. ऐसा ही हमारा पिताजी का दिल बहुत ही बड़ा है. बाकी दूसरे लोग, उनका भाई, बड़ा भाई उनके बोला ये तो व्यभिचारी आदमी है, लुटेरा है, ये है वो है, वो सब बुलाते रहेंगे बस. तो मालूम नहीं था उनका दिल had changed, his life has changed, heart has changed. God sees the heart. प्रभु आपका दिल देखते हैं. आप दिल से if you have repented, God loves you and God calls you by a precious name. आपका नाम से आपको बुलाते हैं. So that is very important for us to see. मैं भी मुझे याद आता है कि बाइबल में भी कई लोग रेहाब थे. आप लोग पहले रेहाब के बारे में लिखा है. नया टेस्टामेंट में भी रेहाब के नाम लिखा है. तो क्या है? रेहाब जो व्यभिचारी थी, रेहाब द हार्लट. The writers are writing like that. She has left the harlotry long time back and she got a beautiful son called Boaz. Boaz का बेटा था, उससे डेविड पैदा हुआ. उसके बाद लेकिन लोगों का क्या इंप्रेशन एक बार रहता है, लोग हमारा पाप कभी भूलते नहीं है. परमेश्वर हमारा बाप हमेशा भूल जाते हैं. लोग कभी नहीं भूलते हैं. आप कितना भी खराब है, अच्छा हो जाए, people will remember you by your bad name only. But we just forget about people. मैरी मैगडलीन को भी इतना सारा लोग बोला ये व्यभिचारी है, वो कौन जाएंगे उनके पीछे. तो वो ये खुशखबरी लेके डिसाइपल्स शिष्यों के पास आए थे. शिष्यों ने बोले हाँ ये कौन है ये.
उनसे कि उनकी बात मैं क्यों सुनूं? इसलिए यीशु मसीह ने उन लोगों को हड़काया। They scolded them, आप क्यों विश्वास क्यों नहीं किया? तो many times हम लोग इतना इंसानियत में कि हम लोग कभी किसी के बात सुनते नहीं है। हम लोगों के the bad part only we see. Even believers भी ऐसा है, होता है। तो हमारे बचपन में भी हमारे एक नेबर थी, एक बार वो क्या किया, उन्होंने एक गुलाब की चोरी किया। तो उन्होंने सब लोग उनको क्या बोला, गुलाब चोर, गुलाब चोर। कौन है उनका नाम? उसके नाम से कहीं बुलाया नहीं, उनकी अच्छी नाम थी। अब अभी मुझे भी याद है, हम लोग ये वो लड़की है ना, गुलाब चोर है, ये गुलाब चोर के घर है। तो यही छोटी सी चीज किया उन्होंने, लेकिन लोग उनका कोई गलत याद करते हैं। लेकिन प्रभु यीशु ऐसा नहीं है। मैरी मैगडलीन को भी ऐसा निंदा करके 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 विश्वासी होने के बाद भी, उनका मन फिराने के बाद भी, लोग भी, बाकी यहूदी लोग, बाकी बिलीवर्स भी उनको थोड़ा, उनका मन से थोड़ा तुच्छ देखते थे। They used to look down on her, but she knew that only one person loved her very much, and because she served him for so many years, 1 or 2 years, the name of Jesus सर्वश्रेष्ठ नाम है, यीशु मसीह का नाम। We can always go to the Lord Jesus. एक ब्रदर ने कहा, बाकी सब नाम भूल जाओ आपको तकलीफ में, सिर्फ यीशु का नाम याद करो, यीशु को पुकारो। यीशु मेरे दिल से मैं पुकार रहा हूँ, मैं पापी हूँ, मुझे माफ कर दो, मेरा तो जो कोई भी गुण नहीं है, मैं तो नरक में जाने वाली थी। ऐसा करेंगे तो प्रभु आपके पास आएंगे और आपको आपके पास प्रवेश करेंगे, आपका दिल में होगा, आपके घर में भी हो जाएंगे। मेरी बेटी के पास पता नहीं उनका कोई रिलेटिव था, कोई तो हस्बैंड भी नहीं होगा, अकेली थी। एंड जब एक लेडी तो अकेली होती है, वो बहुत निराश हो सकती है। सब लोग पता नहीं उनको क्या ज्यादा रिस्पेक्ट भी नहीं देते। The Lord gave her tremendous respect. First person to see the Lord was Mary Magdalene. तो हमको कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, हर चीज में प्रभु को बोलना चाहिए। प्रभु हमको हमारा पाप से निकाल देंगे, हमको हमेशा He will always encourage us every situation. So that is a wonderful message, and she became the person to tell the good news to other people also. That is the most remarkable thing at all. उनको इतना बड़ा वंडरफुल एक काम दिया प्रभु ने, तो सुसमाचार बांटने के लिए। बाकी बिफोर टेलिंग द डिसाइपल्स आल्सो, जीसस टोल्ड द डिसाइपल्स गो टू ऑल द वर्ल्ड। के बाद मैरी मैगडलीन के बारे में आप लोग कभी ज्यादा सुनते भी नहीं है क्या हुआ, लेकिन वो चुपचाप बैठ के प्रभु का आराधना करते थे, प्रभु का प्रेम ही करते थे। जब हम स्वर्ग में जाएंगे तभी हमको पता चलेगा मैरी मैगडलीन का काम कितना बड़ा था, कितना प्रार्थना किया, प्रभु का आदर किया। वही अंदर की चीज, God looks at the heart, not look at outside ministries. So we must always be devoted to the Lord. प्रभु